Good morning, everyone, and welcome to the class. We are now going to start the last chapter in history, and that is buildings, paintings, and books. And as I told you in the previous class, this chapter is about the developments in the field of buildings or structures, paintings, and books. And in this, we will discuss some of the important structures or buildings of the country of the period which is around 1500 years ago, the period about which we have discussed in the previous class. जो हमने previous class में भी 1500 years ago की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे उसको हमने डिस्कस किया है एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the same period, but our discussion will be focused on the buildings, paintings, and books. And in this regard, our first discussion will be regarding the iron pillar, which is there in Delhi at Mehrauli. Mehrauli is a place in Delhi, and this iron pillar is there. This is a very beautiful example of the skill of Indian craft persons. Okay, so the iron pillar. We see that this iron pillar, as the name suggests, it is made of iron. Okay, and its height is 7.2 meters. Okay, and its weight is, what is the weight of this iron pillar? It's 3 tons. Okay, and we find that this iron pillar was made about 1500 years ago. And how do we know about this it was made about 1500 years ago? Because there is an inscription on the pillar in which date is ruler's name is written कि किस ruler ने इसको बनाया था, and the name is written Chandra. The whole complete name is not there, only Chandra is there, and the historians are of the view that this iron pillar was made by Chandragupta, because in that inscription it is written that Chandra, the ruler of Gupta dynasty. So it must be made by Chandragupta. So we see that this is a magnificent structure of ancient India, and what is most striking about this iron pillar is that it is existing there for the last 1500 years, but still it is not rusted. If we all know this is the a scientific reaction happens when iron is exposed to moist, है ना, जब जो भी हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्ट होता है उससे जब एक्सपोजर होता है आयरन का, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि रस्ट बनता है, जिसके कारण जो आयरन है वो क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है. एंड व्हाट वी फाइंड कि ये this iron pillar is there for the last 15 years, not only the moist in the atmosphere, but it is also facing so many rainfalls. इतने सालों में कितनी बारी कितनी सारी बारिश हुई, तो still it is not rusted. So that is the most important feature of this iron pillar, and that proves कि how qualified were the people of ancient India in this metallurgy. मेटल से रिलेटेड वर्क में उनकी एफिशिएंसी को ये बताता है. और इस मेटलर्जिकल हिस्ट्री में हमने बहुत सारे कुछ किए हैं, जैसे कि अगर हम देखें हड़प्पा जो सिविलाइजेशन हमारी थी, जिसको कि हम अर्लीस्ट सिटीज़ के नाम से जानते हैं,
Harappans, they were also very efficient in this metallurgical activity, and we know that they have the knowledge of copper metallurgy. And what they did, they manufactured bronze by mixing copper and tin. कॉपर और टिन को मिलाकर के उन्होंने ब्रॉन्ज प्रोड्यूस किया था, हड़प्पन्स. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटलर्जी. एंड आफ्टर हड़प्पन्स आयरन एज स्टार्टेड. इन हमारे जो हड़प्पन्स थे, दे बिलोंग टू ब्रॉन्ज एज. उस समय तक people were not aware of this metal iron. People were using copper, tin and bronze only. And after the Harappans, iron was started to be used in the Indian subcontinent, and we see such magnificent work creation which was done by the craft persons of India. Okay, and now other than this iron pillar, there are other structures also which are very important, the structure of this period, and in this we must mention about stupas. So iron pillar के बाद हम लोग stupas के बारे में देखेंगे. Okay. So what we find that the stupa, what is the meaning of a stupa? First of all, you must know the meaning of a stupa. Stupa is a mound. एक तरह का जो माउंड क्या होता है, ऐसे ये हमारा प्लेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस पे जो ऐसे, दिस इज कॉल्ड माउंड. ये जो उठा हुआ सा जो एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम माउंट कहते हैं. तो स्तूपा का मीन्स होता है माउंट. ओके, सो वी फाइंड दैट इन आवर कंट्री different types of stupas are found, like some are round, some are tall, some are big, some are small, but they all have some common feature. मतलब structure देखने में वो अलग अलग हो सकते हैं, they can be different. कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई गोल है, but they have some common features. और ये common feature क्या है? What is the common feature of stupas? The common feature is there is a small box placed at the center or heart of the stupa. जो stupa है उसके center में क्या होता है? एक small box होता है. Okay? एक बॉक्स रखा जाता है. एंड व्हाट इज देयर इन द बॉक्स? बॉक्स के अंदर क्या होता है? व्हाट वी फाइंड इन दिस बॉक्स, इट मे कंटेन bodily remains of Buddha or his followers. It's not certain कि वो किसकी bodily, मतलब किसी के भी, या तो बुद्धा का bodily remains इसमें हो सकता है. bodily remains क्या? आफ्टर हिज डेथ जो भी उनके बॉडी के पार्ट्स हुए, लाइक टीथ हैं, बोन है, एसेस हैं, है ना, तो उनको यहाँ इसमें रखा गया है. या तो बुद्धा या फिर जो उनके फॉलोअर्स थे उनकी बॉडी के जो रिमेन्स हैं, ठीक है, उनको इसमें रखा गया है. एंड दैट इज व्हाई इट इज अ रिलीजियस प्लेस फॉर बुद्धिस्ट. वो इनकी पूजा करते हैं कि जो उनके गॉड हैं और उनके डेथ के बाद जो भी उनकी बॉडी के रिमेन्स हुए, एसेस हैं, बोन्स हैं, टीथ है, उसको इस पे रखा गया है. ठीक है. अदर देन बॉडली रिमेन्स, सम अदर थिंग्स, जैसे जो चीज़ें वो यूज़ करते थे, उनके पर्सनल यूज़ की चीज़ें भी इसमें रखी जा सकती हैं. और कई बार प्रीसियस स्टोन्स एंड कॉइन्स आर आल्सो केप्ट इन द दिस स्मॉल बॉक्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड दिस स्मॉल बॉक्स इज नोन एज रेलिक कास्केट. इट इज नोन एज ओके. इसको हम क्या कहते हैं? रेलिक कास्केट. और ये इसको ऐसे ढक दिया जाता है. इट इज नॉट अनकवर्ड. उसको रख करके
इस बॉक्स को रख के बॉक्स के अंदर बॉडली रिमेन्स या उनके पर्सनल यूज के थिंग्स या फिर प्रेशियस स्टोन्स और कॉइन्स रख के फिर उसको उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है विथ अर्थ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वाज एडेड, इसके ऊपर से क्या होता है, ब्रिक्स को ऐड कर दिया जाता है। ये ब्रिक जो है ये मड ब्रिक हो सकते हैं या बेक्ड ब्रिक हो सकते हैं, ठीक है। पूरा ऊपर से एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर कर दिया जाता है, यही इसी को हम स्तूपा कहते हैं। ऐसे ही स्तूपा का मतलब बनते हैं ऐसे ही। अगर आपने कहीं भी देखा होगा स्तूपा का फोटो, या इट इज गिवन इन योर बुक आल्सो, पिक्चर ऑफ सांची स्तूप, उसमें क्या हम देख रहे हैं कि इसी तरह का एक उठा हुआ जो मोल्ड है वो हमको दिख रहा है, इसके ऊपर ब्रिक्स से उसको पूरा ढक दिया जाता है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड स्तूपा एंड द बॉक्स इज कॉल्ड रेलिक कास्केट। एंड इस तरह से जो ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, फिर इसके ऊपर से उसको ब्रिक से ढक दिया गया, या तो ब्रिक बेक्ड हो सकता है या फिर वो जो जिसको हम कहते हैं मड ब्रिक वो भी हो सकता है, उस तरह से कर दिया जाता था। और उसके बाद क्या होता था, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर से उसको ढक दिया जाता था, पूरा का पूरा जो है एक बड़ा सा डोम के जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाता है। दिस इज योर स्तूपा वेयर पीपल गो फॉर द पर्पस ऑफ वर्शिप, ठीक है। एंड अदर देन दिस क्या होता था कि ये जो स्तूपा है इसके चारों तरफ एक सर्कुलर जैसे गोला से एक पाथ बना दिया जाता था, जिसको क्या कहा जाता है, प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। इस स्तूपा के चारों तरफ ऐसे इधर से फिर वो पीछे से आएगा, है ना, ये एक प्रदक्षिणा पाथ बना दिया जाता है, जहां पर पीपल हु गो फॉर वर्शिप दे वो सर्कल में घूमते हैं। if you have gone for any Buddhist place, you must have experienced this, वहां पर इस तरह से गोले में घूमना होता है, ठीक है। तो this is what is called this is called प्रदक्षिणा पाथ, ओके। जो कि इनके रिलीजियस रिचुअल का एक पार्ट होता है कि दे मस्ट हैव अ circular movement around this casket, okay। So अब ये जो प्रदक्षिणा पथ है इस पर क्या लगा होता है, इसके चारों तरफ रेलिंग्स बनी होती है ना, रेलिंग्स जिसको हम कहते हैं ऐसे ऐसे करके ये पूरा रेलिंग्स बना होता है, ओके। और ये रेलिंग्स जो बने होते हैं इन पे क्या होता है, तरह तरह के कार्व्ड होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, है ना। और इस पाथ के लिए एंट्रेंस के लिए गेट्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पर गेट है, ठीक है, जिससे कि आप एंटर कर सकते हो, यहाँ पर गेट्स हैं, ओके। तो गेट्स होते हैं, रेलिंग्स होती हैं, और जो डिवोटीज होते हैं वो स्तूपा की चारों तरफ वॉक करते हैं, ठीक है। और किस डायरेक्शन में दे वॉक इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में इट गोज फ्रॉम दिस साइड, ऐसे, ओके। यू शुड नॉट मूव एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो ये जो मूवमेंट होता है प्रदक्षिणा पथ में वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है। एंड जो रेलिंग्स हैं, जो गेटवेज हैं, वो सभी में बहुत उसको डेकोरेट किया जाता है, स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं तरह तरह के। तो यू मस्ट अगर कहीं भी जो भी बुद्धिस्ट है स्तूपा, उसमें हमको ये सब कुछ देखने को मिलता है, ओके। एंड इसी तरह से अमरावती is a place where a magnificent stupa was existed at one point of time, ठीक है, अमरावती में है। एंड ये जो स्तूपाज हमें देखने को मिलते हैं ये सभी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और जो बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स थे उन्होंने इसको बनाया, किंग्स ने बनवाया,
इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है। सांची का स्तूप इज वेरी मच फेमस, जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड इट वाज बिल्ट सेवरल centuries ago. Okay, and other than this, we see that there are other buildings also uh, who were hollowed out of rock to make artificial caves. We talked about these artificial caves earlier also when we were talking about monasteries. Monasteries, जब हम लोग बुद्धिज्म से रिलेटेड monasteries को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि मैन मेड केव्स भी होते हैं, जिसमें कि जो बड़े बड़े रॉक्स होते थे उसको हॉलो करके वो केव्स बनाए जाते थे। ठीक है, तो इस तरह की केव्स का भी हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, मैनमेड केव्स। और वो जो मैनमेड केव्स होते हैं उसको फिर अंदर से काफी डेकोरेट भी किया जाता है, जैसे बहुत सारे स्कल्पचर्स लगाए जाते हैं, वॉल्स पे कई तरह की पेंटिंग्स की जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर स्तूपास। एंड नाउ we will discuss other structure, and that is Hindu temples. Hindu temples were also one of the most important structure of that time, and we see that this the worship of deities started like Vishnu, Shiva, Durga, है ना। ये सारे टेम्पल्स में क्या होता था, डेटीज का ये प्लेस होता था, उनको प्लेस किया जाता था डेटीज को। कौन सी डेटीज? विष्णु, शिव एंड दुर्गा। एंड इन दिस टेम्पल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट was गर्भगृह। ओके, टेम्पल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दैट इज गर्भगृह। ये गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह जो होता है वो सेंट्रल प्लेस होता है टेम्पल में, जहाँ पर कि डेटी के इमेज को रखा जाता है। चीफ डेटी, जो जैसे और भी डेटी होते हैं एक मंदिर के अंदर, अगर इफ यू गो टू अ टेम्पल यू विल सी द टेम्पल has so many deities, but there is one chief deity. Chief deity जो भी सेंटर में जिनकी आइडल को रखा गया है दैट इज चीफ डेटी, उन्हीं के मंदिर के नाम से वो जाना जाता है। तो ये गर्भगृह जो होता है वो प्लेस होता है जहाँ पर कि चीफ डेटी को इमेज को प्लेस किया जाता है, और यही वो जगह होती है जहाँ पर जो प्रीस्ट होते हैं वो वर्शिप परफॉर्म करते हैं, तरह तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। एंड देन जो डिवोटीज आते हैं मंदिर में फॉर द पर्पस ऑफ वर्शिपिंग, वो इसी गर्भगृह में आकर के वो वर्शिप करते हैं। ठीक है, एंड वी सी इन योर बुक so many pictures of temple is given, like in यूपी भीतरगांव का एक टेम्पल है जो कि आज से 15 years ago बना था, एंड इट वाज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन। जो बेक्ड ब्रिक होते हैं उनसे और स्टोन से इसको बनाया गया था। एंड इसी तरह से मोनोलिथिक स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है। मोनोलिथिक टेम्पल्स, मोनोलिथिक, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट। यू कैन जस्ट इमेजिन कि इतना बड़ा टेम्पल जो है वो सिंगल स्टोन से बन रहा है। ठीक है, इसमें पूरे के पूरे सिंगल स्टोन से उसको कार्व करके अंदर से हॉलो करके मंदिर बनाया जाता था। ओके, एंड जो ब्रिक होता है, ब्रिक स्ट्रक्चर से बनने वाली चीजें कैसे बनती हैं? ब्रिक स्ट्रक्चर से जो चीजें बन रही हैं वो तो एक पर एक रख के, जैसे वी स्टार्ट फ्रॉम दी बॉटम, ये हमारा ब्रिक होता है ना, ऐसे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर सबसे पहले नीचे का स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसके ऊपर का स्ट्रक्चर बनता है ना। बट व्हेन वी गो फॉर monolithic structure, in that we start from the top। जो स्ट्रक्चर बनाने का काम होता है वो स्टार्ट होता है टॉप से। जो स्टोन कटर्स होते हैं
वो टॉप से डाउनवर्ड की तरफ आते हैं और इस तरह से वो टेम्पल को बनाते हैं। जो हमारे हमें देखने को मिलता है महाबलीपुरम में, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मोनोलिथिक टेम्पल। ओके, और इसी तरह से आईहॉल में दुर्गा टेम्पल भी देखने को मिलता है, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है, जो कि 1400 ईयर्स अगो बना था। ठीक है, सो मंदिर के अंदर जो हम स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, हमने मंदिर के बाहर देखा कि कुछ मंदिर, कुछ जो टेम्पल्स हैं वो ब्रिक से बन रहे हैं, कुछ टेम्पल जो है वो स्टोन से बन रहे हैं। स्टोन में भी कुछ जो है वो मोनोलिथिक है, और जब जब हम ब्रिक से बना रहे हैं तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जब स्टोन से बना रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब मंदिर के अंदर की जो हम स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो था वो गर्भगृह है। एंड अदर देन दिस गर्भगृह, there are other important parts of the temple, and one of such part is shikhara. शिखर, इट्स अ हिंदी वर्ड। शिखर का मतलब क्या होता है? जो सबसे ऊपर होता है। जैसे हमारा जो सिर है उसको हम शिखर कहते हैं, है ना। शिखर का मतलब सबसे ऊपर जो हमारा पार्ट है। और जब हम किसी टेम्पल की शिखर की बात करते हैं तो इट इज जो गर्भगृह है जहाँ पर कि चीफ डेटी को प्लेस किया गया है, उसके बिल्कुल ऊपर में शिखर होता है। मंदिर का जो टॉप होता है, जो मंदिर का स्ट्रक्चर, यू मस्ट हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मंदिर, इस तरह का होता है ना। तो ये जो शिखर हम देख रहे हैं, ये इसके जस्ट नीचे, बिल्कुल नीचे हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा गर्भगृह होता है। ठीक है, द चीफ डेटी इज प्लेस्ड हियर एंड दिस इज द शिखर। ये इसलिए शिखर को ऊंचा बनाया जाता है ताकि दूर से ही लोग, पीपल शुड नो कि वहां पर एक टेम्पल है। ओके, और शिखर को बनाना बहुत ही मतलब प्लानिंग के साथ बनाए जाते थे। ओके, and then other than this garbhagriha and shikhar, there is another part of the temple and that is known as mandapa. Mandap, ये भी it is also a Hindi word. Mandap means a hall where people could assemble, जहाँ पे लोग assemble होंगे, they can sing devotional songs and bhajan kirtan, all these things can be done in mandapa. They can वहाँ पर वो रुक सकते हैं थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम जो देखते हैं कि इस समय के बहुत ही टेम्पल्स जो थे वो इस तरह से बनते थे। and still today we are following the same method. आज भी हमारे टेम्पल के अंदर these are the most important structure, इसी तरह से टेम्पल आज भी बनते हैं। okay, so now we have discussed about कि स्तूपा कैसे बनते थे, क्या होता था, देन टेम्पल के बारे में भी हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल सी कि आखिर ये एक्चुअली बनने का प्रोसेस क्या होता था। ठीक है, कैसे ये स्तूपा और टेम्पल्स जो है वो बनाए जाते थे। ओके, so our next topic is how stupas and temples were built. How were stupas and temples built? कैसे वो बनते थे? Okay, it was not an easy task. टेम्पल को बनाना आसान नहीं होता था। It was a very difficult task. What was the difficulty in this? The difficulty was कि एक तो बहुत सारे stages होते थे इसके बनने में। There were so many stages. Okay, कौन कौन से स्टेज होते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसीजन लेना कि टेम्पल या स्तूपा को बनाना है। ओके, and who will take the decision कि a temple or a stupa is to be made at a particular place? The decision will be taken by some person who is able to
स्पेंड मनी, है ना, जिसके पास पैसा होगा वही ये डिसीजन ले सकता है. एंड हु वाज द person who was holding the money at that time? The king or the queen. So decision was taken by the king or queen कि मंदिर या स्तूपा बनाना है. Okay, तो the first stage was decision making. This decision was made by the king or the queen. After decision decision has been made कि yes बनाना है मंदिर. अब क्या चाहिए? अब चाहिए गुड क्वालिटी स्टोन, है ना. कहाँ पर हमें गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन मिलेगा? वेयर वी विल फाइंड गुड क्वालिटी स्टोन? जहाँ भी मिलेगा वहां से उसको क्वेरी करना. क्वेरी मीन्स उसको निकालना, स्टोन को कलेक्ट करना, एंड देन उसको ट्रांसपोर्ट करना. कहाँ? जहाँ पर मंदिर बनाना है. बिकॉज मंदिर जहाँ बनेगा वहां पर स्टोन नहीं अवेलेबल होंगे. स्टोन के लिए प्लेस खोजना होगा कि कहाँ पर स्टोन हमें अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिल रहे हैं. उसको निकालना होगा वहां से, देन उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा. तो द सेकंड स्टेप इज टू फाइंड, क्वेरी एंड ट्रांसपोर्ट द स्टोन. इन दिस क्वेरी, क्वेरी का मतलब डिगिंग करना, ठीक है. तो इस तरह से पहले स्टोन को कलेक्ट किया गया. एंड ये बहुत आसान नहीं होता था स्टोन को ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज एट दैट टाइम ट्रांसपोर्टेशन का कोई मीन्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, है ना. तो ये बहुत परेशानियों वाली चीज़ें होती थी ये सारी कुछ. एंड स्टोन अब ट्रांसपोर्ट करके ले आया गया. उसके बाद अब क्या प्रॉब्लम आएगी? अब इनको शेप देना, है ना. जो बिल्कुल ही रफ स्टोन्स हैं उनको शेप दे करके पिलर्स बनाने, फिर वॉल्स के लिए पैनल्स बनाने, फ्लोर्स बनाना, सीलिंग्स बनाना, ये सारा कुछ काम किया जाता था. तो इट वाज अ मैसिव अफेयर, बहुत बड़ा काम होता था. एंड जब सब चीज़ें अलग अलग बन गई, फिर उसको क्या किया जाता था कि सही पोजीशन में उनको प्लेस किया जाता था. सो द नेक्स्ट फेज वाज टू shape and carve into pillars, floors, ceiling, एक्सेट्रा. तो ये इस तरह से काम होते थे. मतलब एक स्टेजेस में, स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम होता था. सबसे पहले डिसीजन लिया गया, देन स्टोन को खोजा गया, उसको ट्रांसपोर्ट करके लाया गया, फिर उसको शेप दिया जा रहा है, कार्व किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग बन गए, फिर उनको प्लेस किया जाना. तो इस तरह से जा करके फाइनली जो एक स्ट्रक्चर था वो तैयार होता था, जिसको कि हम मंदिर कहते हैं, जिसमें स्तूपा भी ऐसे ही बनते थे, मोनास्ट्रीज भी ऐसे ही बनते थे. ओके. एंड वी सी कि जो मंदिर बनाने वाले थे, जैसे हम बात कर रहे हैं, जो शेप और कार्व कर रहे हैं पिलर्स को, पैनल ऑफ वॉल है, फ्लोर है, सीलिंग है, देन उसको प्लेस कर रहे हैं, दे वर कॉल्ड क्राफ्ट पर्सन्स. वो क्या होते थे? वो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे. एंड एवरीथिंग वाज डन बाय देम ओनली. उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो था वो क्राफ्ट पर्सन्स का ही होता था. सो दीज क्राफ्ट पर्सन्स वर पेड बाय द किंग. उनको काम के बदले में पेमेंट करनी होती थी. तो दिस पेमेंट वाज डन बाय द किंग. अदर देन दिस वी आल्सो सी कि जो डिवोटीज आते थे, द डिवोटीज हु केम टू विजिट द टेम्पल, they also used to brought gifts for the temple, and these gifts were used for
decorating the temples. Even today, we follow such practices. जो भी लोग मंदिर जाते हैं तो वो अपने साथ कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं ताकि वो मंदिर में अपना contribution कर सके. Okay, so we will continue our discussion regarding these in the next class.